Hello everyone. Here I am discussing paper 1 of full course 1, that is objective part of test 21 held on 29th November. Right, so let's start with question number 1. In the given figure, triangle AEB is congruent to. हमें चेक करना है ट्राइंगल AEB किसके कॉन्ग्रुएंट है. अब दिख रहा है ट्राइंगल AEB एंड CED कॉन्ग्रुएंट हैं. क्यों? ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट. इफ दीज लाइंस आर पैरेलल देन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, alternate angles, and it is given that EB is equal to EC. तो दिख रहा है हमें that these two triangles are congruent by AAS congruency criteria. अब हमें correspondence चेक करनी है कि triangle AEB किसके congruent है. तो EB is equal to EC, मतलब ये जो EB है it corresponds to EC. अब ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं. EC ऑप्शन कहाँ आ रहा है? यहाँ, और कहीं नहीं आ रहा. So option C is the correct answer. Question number 2. The distance of point 5,12 from the origin is. Right? हमें origin से B point का distance, that is OB निकालना है. अब OB triangle OAB में आ रहा है, और अगर ध्यान से देखें ट्राइंगल OAB इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. क्यों? देखो y कोऑर्डिनेट क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस. तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज दिस एंगल इज 90. अब OA पता है, AB पता है, तो OB निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. लगाओ, क्या आएगा? OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर, दैट इज 5 स्क्वायर, प्लस AB स्क्वायर, दैट इज 12 स्क्वायर. तो यहाँ से OB कितना आ गया? 5 स्क्वायर, दैट इज 25, प्लस 144 अंडर द रूट, दैट इज OB इज इक्वल टू रूट 169. OB इज इक्वल टू 13 यूनिट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D. Question number 3. A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle. If its perimeter is 480 centimeter, the area of the signal board is. एक ट्रैफिक सिग्नल है इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्म में, राइट. उसका एरिया हमें फाइंड करना है. एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए हमें क्या फाइंड करना होता है? साइड ऑफ ट्राइंगल, राइट. एंड साइड ऑफ ट्राइंगल कैसे आएगी? We are given that perimeter is 480 centimeter. So let side be A, right? A centimeter is the side. Perimeter क्या होगा? 3 into A. 3 into A is given to be 480 centimeter. Right? So the side is 480 divided by 3, that is 160 centimeter. This is the side of equilateral triangle. Now what will be the area of equilateral triangle? It is equal to root 3 upon 4 into side का square, that is 160 centimeter square. Calculate करें, क्या आएगा? root 3 upon 4 into 160 into 160. So this cancels out on 40. So it turns out to be 16 fours are 6400 root 3 centimeter square. Right? अब ध्यान से सीधा ये वाला ऑप्शन टिक नहीं कर देना, because it is in मीटर स्क्वायर एंड हमारा आंसर कहाँ है? सेंटीमीटर स्क्वायर में. तो सारे ऑप्शंस मीटर स्क्वायर में है, तो सबसे पहले इसे मीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं. उसके लिए डिवाइडेड बाय 100 into 100. तो क्या आ गया? 0.64 root 3 मीटर स्क्वायर. So the correct answer is option A. Question number 4. Two coins are tossed simultaneously 1200 times with the following frequency of different outcomes. The
probability that at most one head occurs is, so two coins are tossed simultaneously 1200 times. जिसकी frequency of different outcomes is given to be this. We need to find the probability that at most one head occurs. A probability that at most one head, इसका क्या मतलब है? At most one मतलब ज्यादा से ज्यादा one head आना चाहिए. ज्यादा से ज्यादा one head मतलब 0 head आ सकता है, 1 head आ सकता है. अब 1 से ज्यादा नहीं आ सकता, ज्यादा से ज्यादा 1 ही आ सकता है. So this is the probability that at most one head occurs, right? अब probability of an event होती क्या है? Number of trials in which the event occurs upon total number of trials. Right? अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स तो हमें पता है, कॉइन को 1200 टाइम्स टॉस किया है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इज नथिंग बट 1200. नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट अकर्स, तो सबसे पहले देख लेते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच 0 हेड अकर्स. 0 हेड, हमें तो यहां दिया हुआ है नंबर ऑफ टाइम्स टेल्स अकर्स, राइट? तो अगर 0 टेल आई है तो हेड कितने आए होंगे? 2, because 2 coins were tossed. अगर 1 tail आई है तो हेड कितने होंगे? 1. एंड अगर 2 tails आई है तो हेड कितने होंगे? 0. राइट? सो दिस इज द नंबर ऑफ हेड. नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच 0 head occurs. 0 head occurs is 215 upon total number of trials is 1200. Plus number of trials in which 1 head occurs is 725 and total number of trials is 12. So you can easily add this and the answer in the lowest form is option A, that is 47 upon 60. Question number 5. If x is equal to 9 minus 4 root 5, then the value of x square plus 1 upon x square is, right? x दिया हुआ and x square plus 1 upon x square की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो एक तो तरीका है कि x से x square निकालो, फिर 1 upon x निकालो, 1 upon x square निकालो और फिर इन्हें ऐड कर दो. ठीक है, पर इतना मुश्किल तरीका क्यों करें हम? We know a identity that a square plus b square, जो कि यहाँ पे है x and 1 upon x. This is equal to a plus b का whole square minus 2ab. Right? कोई नई आइडेंटिटी नहीं है, a plus b के whole square की आइडेंटिटी को मॉडिफाई करके लिखा है. राइट? तो ये निकालने के लिए x हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें सिर्फ 1/x फाइंड करना है. राइट? ये तो कैंसिल हो जाना है, तो 1/x निकाल लेते हैं. अगर x 9 माइनस 4 रूट 5 है तो 1/x कितना होगा? 1 upon 9 माइनस 4 रूट 5. राइट? रैशनलाइज करते हैं इसे. रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9 प्लस 4 रूट 5. तो 1 upon x क्या आ गया? 9 प्लस 4 रूट 5 अपॉन a माइनस b, a प्लस b. क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो a स्क्वायर मीन्स 9 का स्क्वायर, दैट इज 81, माइनस b स्क्वायर मीन्स 4 रूट 5 का स्क्वायर. वो क्या होगा? 4 का स्क्वायर इज 16, रूट 5 का स्क्वायर इज 5, तो 16 5 are 80. तो यहां से डिनोमिनेटर क्या आ गया? 81 माइनस 80, दैट इज 1. तो 1 अपॉन x इज
9 प्लस 4√5। अब वैल्यू पुट कर दें, x इज 9 माइनस 4√5 प्लस 1/x इज 9 प्लस 4√5 होल स्क्वायर माइनस 2, राइट। सो 4√5 से 4√5 कैंसिल, 9 प्लस 9 18 स्क्वायर, 18 स्क्वायर इज 324 माइनस 2। सो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आ गया, 324 माइनस 2 दैट इज 322। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 6. The coefficient of a square in the expansion of 2a minus 5 whole cube is. So 2a minus 5 whole cube को expand कर लेते हैं, 2a minus 5 whole cube. This is actually a minus b whole cube. a minus b whole cube किसके इक्वल होता है, a cube, that is 2a का cube minus b cube, that is 5 cube, minus 3a square into b, right, plus 3a b square. तो ये होती है एक्सपेंशन। हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर यहां से नहीं आएगा, यहां से नहीं आएगा, यहां से आएगा एंड यहां से भी नहीं आएगा, राइट। तो सिर्फ इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आएगा, -3 इंटू 2a का स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर इंटू 5। सो द कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर इज 4 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज 60 minus 60. So the coefficient is -60. That is option D. Question number 7. 6 cubes of side 5 centimeter are joined edge to edge. The total surface area of the resulting cuboid is. तो 6 क्यूब्स थे जिन्हें एज टू एज ज्वाइन कर दिया। तो देखें क्यूबॉइड जो बना है वो कैसे बना होगा, ऐसा कुछ बना होगा। देखो 6 क्यूब्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और इन्हें एज टू एज ज्वाइन किया होगा, राइट। तो ये जो क्यूबॉइड बना, इसकी सबसे पहले तो लेंथ सोचे कितनी होगी। देखो ईच ऑफ साइड 5, तो ये 5 ये 5 ये 5, तो लेंथ कितनी होगी, 5 इंटू 6 30 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड L इज 30 सेंटीमीटर, राइट। इसकी ब्रेड्थ कितनी होगी, ब्रेड्थ तो सेम ही रही, जितनी क्यूब की थी साइड उतनी, तो 5, और हाइट भी सेम रही, दैट इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। So length L is 30 centimeter, breadth B is 5 centimeter, and height H is 5 centimeter. Right, now we have to find the total surface area of cuboid. Total surface area of cuboid होता क्या है, twice of length into breadth plus breadth into height plus height into length. राइट, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, सारी वैल्यूज हमें पता है। लेंथ इज 30 इंटू ब्रेड्थ इज 5 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 30। So you can easily calculate this. Answer turns out to be option C, that is 650 centimeter square. Question number 8. In the following figures,
PQRS is a kite. The value of x is. अब x की वैल्यू निकालने के लिए गिवन है दिस एंगल इज 32 डिग्री, राइट? अब अगर हम इस ट्राइंगल में ध्यान से देखें, ये x, ये 32 डिग्री, क्या ये वाला एंगल हमें पता है? डेफिनेटली पता है। क्यों? क्योंकि जो काइट है उसके डायगोनल्स दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, सो दिस इज 90 डिग्री। अब काइट की ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगर सब्जेक्टिव पेपर होता तो हमें प्रूफ करनी पड़ती, बट ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए अगर आपको प्रॉपर्टीज याद हैं तो इट्स वेरी हेल्पफुल। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। x plus 90 plus 32, this is equal to 180 degree. Then x is 180 minus 90 minus 32. So x is 58 degree. So the correct answer is option D. Question number 9. In the given figure, AC is the diameter of the circle. The value of x is. x निकालना है, गिवन है AC is the diameter and this angle is 30 degree, right? अब अगर AC diameter है तो ये एंगल कितना होगा? एंगल ABC. This is equal to 90 degree. Angle ABC is 90 degree. Why? It is the angle in the semicircle. Angle in the semicircle is 90 degree. So if this is 90, this is 30, ये वाला एंगल कितना आ गया? 90 minus 30, that is 60 degree. अब x निकालना था, x CD आर्क बना रही है और CD आर्क ही ये वाला एंगल 60 डिग्री भी बना रही है. So these are the angles in same segment. So x is equal to 60 degree. The answer is option B. Question number 10. In the given figure, AB is parallel to FD. These lines are given to be parallel. The measure of angle X is. X निकालना है and ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है 85 डिग्री. साथ में if AB is parallel to FD, then these are corresponding angles. So if this is 85 degree, this is also 85 degree, right? अब x निकालना है, ध्यान से x is the exterior angle of this triangle. So x is actually 85 plus 30 degrees, right? So x is 115 degrees. So the correct answer is option C. Question number 11. In the given figure, AB is equal to 5 centimeter. Then write the perimeter of triangle OAB in centimeters. Right? Triangle OAB का perimeter लिखना है. मतलब हमें तीनों sides पता चलनी चाहिए, तभी हम perimeter लिख सकते हैं. अब उसके लिए given है एक angle तो 60 डिग्री, right? And OA is equal to OB. Why? Because they are radius of the same circle. अगर OA is equal to OB है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, right? So if this is x, this is also x. So we can apply angle sum property of triangle and can get x plus 60 is equal to 180 degree by angle sum property. तो यहाँ से x कितना आ गया? I guess 2x is equal to 120 and x is equal to 60 degree, right? तो ये भी 60 and ये भी 60. तीनों angles of triangles are 60 degree. So triangle is a equilateral triangle. Equilateral triangle है तो ये 5 centimeter, ये भी 5 centimeter and ये भी 5 centimeter. And what is the perimeter of triangle OAB? 5 plus 5 plus 5, that is 15 centimeters. So the answer is 15. Question number 12. Write the value of 1 upon 343 to the power minus 1 upon 3 की whole power 2 in integer form.
तो बेसिकली इसे इवैल्यूएट करना है, इंटीग्रल वैल्यू लिखनी है। तो यहां से शुरू करते हैं। दिस इज 343 टू द पावर -1/3। तो सबसे पहले ऐसा नंबर सोचो जिसकी थर्ड पावर 343 होती हो। 7 क्यूब इज 343, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/7 क्यूब टू द पावर -1/3 की होल पावर 2, राइट। तो 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया 1/7 की पावर -1 का होल स्क्वायर। इसका क्या मतलब है 1/7 की पावर -1, दैट इज एक्चुअली 7, रेसिप्रोकल आ जाएगा, नेगेटिव पावर है का स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज 49, so the answer is 49. Question number 13. In the given figure, write the value of x minus z in degrees. तो x minus z निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले x निकाल लेते हैं और z निकाल लेते हैं, ठीक है। x निकालने के लिए देखो, x इस ट्राइंगल में आ रहा है, राइट। इस ट्राइंगल में ये एंगल 70 डिग्री एंड दिस इज द एक्सटीरियर एंगल टू द ट्राइंगल, राइट। तो x कितना आ गया 70 प्लस x इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड x इज 125 माइनस 70, दैट इज 55 डिग्री। x आ गया 55। सिमिलरली z निकाल लेते हैं। z इस ट्राइंगल में आ रहा है, इस ट्राइंगल में ये एंगल 40 डिग्री एंड ये एक्सटीरियर एंगल टू ट्राइंगल एबीडी। तो अगेन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, z प्लस 40 इज इक्वल टू 70 डिग्री। z क्या आ गया 70 माइनस 40, दैट इज 30 डिग्री। हमें निकालना है x माइनस z, दैट इज 55 माइनस 30, कितना आ गया 25 डिग्री। सो द आंसर इज 25. Question number 14. In the given figure, ABCD is an isosceles trapezium with AB parallel to DC. If DE is equal to 4 centimeter and O and F are respectively the midpoints of DB and CB, then write the measure of DC in centimeter. तो एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम गिवन है ABCD और DE गिवन है 4 सेंटीमीटर, साथ में गिवन है O इज द मिड पॉइंट ऑफ DB एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ CB. वी नीड टू फाइंड BC, ये साइड हमें फाइंड करनी है एंड अगर ऑब्जर्व करें BC इज इक्वल टू AD। क्यों? क्योंकि हमें गिवन है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, सो BC इज इक्वल टू AD। अगर BC फाइंड करनी है तो AD फाइंड कर लेते हैं, वो उसके इक्वल ही है। अब AD कैसे फाइंड करें? ED तो हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, EA भी फाइंड करनी पड़ेगी। उसके लिए और क्या क्या चीजें जो गिवन है हमने यूज नहीं की। O and F are respectively the midpoints of DB and C, ठीक है। तो अगर इस ट्राइंगल में ध्यान से देखें, O is the midpoint of DB and F is the midpoint of CB, क्या याद आता है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, अगर ये दोनों इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट है देन line joining O and S, this line is parallel to the third side. मतलब OF is parallel to DC using midpoint theorem. तो यहाँ पे हमने लगाई midpoint theorem, right? अब अगर OF DC के parallel है तो AB के भी parallel होगी। क्यों? क्योंकि DC और AB आपस में parallel है। Therefore, OF is parallel to AB as well. और अगर OF AB के पैरेलल है तो ये पूरी EF भी तो पैरेलल है AB के, राइट? अब उससे हमें क्या मिला? अब अगर इस ट्राइंगल में देखें, इन ट्राइंगल DAB,
O is the midpoint of DB and a line from O parallel to BA is drawn. अब यहां पे क्या याद आता है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहते हैं कि अगर एक ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, देन इट इंटरसेक्ट्स द थर्ड साइड एट इट्स मिड पॉइंट. मतलब E इज द मिड पॉइंट ऑफ DA. तो अगर ये मिड पॉइंट है, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर. हमें AD फाइंड करनी है. AD कितनी होगी? 4 + 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर. अगर AD 8 है तो BC भी क्या होगी? 8 सेंटीमीटर. So our answer is 8. Question number 15. In the given figure, O is the center of the circle passing through points A, B, C and D. DC is produced to point E. If angle BOB is 140 degrees, write the measure of angle BCE in degrees. Angle BCE हमें फाइंड करना है. ये फिगर हमें गिवन है, राइट? तो सबसे पहले इफ दिस एंगल इज 140 डिग्री और ये एंगल सेंटर पे डीसीबी आर्क बना रही है और डीसीबी आर्क ही रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे क्या बना रही है? ये वाला एंगल, राइट? सो इफ दिस इज 140 डिग्री, दिस इज 70 डिग्रीज, राइट? क्यों? क्योंकि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, राइट? ये थ्योरम हमने पढ़ी हुई है. सो इफ दिस इज 140, दिस इज 70 डिग्री. नाउ इफ दिस इज 70 डिग्रीज, व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस एंगल? This angle is 180 minus 70. Why? Because ABCD is a cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral है क्योंकि चारों वर्टिसेस एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं. Therefore, it is a cyclic quadrilateral. और cyclic quadrilateral के opposite angles का sum कितना होता है? 180 degree. So, if this is 70, this is 180 minus 70. That is 110 degrees. So if this is 110, this is 180 minus 110. Why? Because these are forming a linear pair. So this angle turns out to be 70 degrees. So the answer is 70. Question number 16. Write the area of quadrilateral ABCD to the nearest integer in which AD is equal to 8 centimeter, angle BAD is equal to 90 degree and BC and D form an equilateral triangle of side 10 centimeter. Right? तो area of quadrilateral निकालना है तो सबसे पहले quadrilateral ही बना लेते हैं. ABCD quadrilateral बनानी है. कैसी? AD 8 centimeter and angle BAD 90 degree. तो सबसे पहले angle BAD ही बना ले. This is angle BAD, which is 90 degree, and AD is 8 centimeter. BC and D form an equilateral triangle of side 10 centimeter. तो ये एक ट्राइंगल बन गई. B, C and D form an equilateral triangle of side 10 centimeter. Means this is 10, this is 10 and this is 10. Right? हमें इस quadrilateral का area find करना है. अब area of quadrilateral होगा क्या actually? ये दो triangles दिख रही हैं, इन दोनों triangles का area. तो area of quadrilateral is actually area of triangle ABD plus area of triangle
BCD। ठीक है, अब एरिया कैसे निकालेंगे? इसका एरिया तो निकाल ही लोगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, राइट। इसका एरिया भी इजीली निकल जाएगा, क्यों? बिकॉज इट इज एन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। अब ऑल्टीट्यूड निकाल लेते हैं, ऑल्टीट्यूड निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज 8 स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड दैट इज AB का स्क्वायर। तो यहां से AB स्क्वायर क्या आ गया? 100 माइनस 64 दैट इज 36। तो AB इज 6 सेंटीमीटर। AB भी हमारे पास आ गई 6 सेंटीमीटर। ओके देन एरिया निकालते हैं ट्राइंगल ABD का। हाफ इंटू बेस 8 इंटू ऑल्टीट्यूड 6 प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल BDC। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड इज 10। कैलकुलेट करें, 6 4 से 24 प्लस दिस इज एक्चुअली 100 एंड दिस कैंसल्स आउट 25 प्लस 25 √3। अब उसने पूछा है नियरेस्ट इंटीजर, तो √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी एंड विच इज गिवन टू बी 1.73। So this is actually 24 plus 25 into 1.73। ठीक है, क्या आ गया? 24 plus 25 into 1.73 that is 43.25, right। ऐड किया, क्या आया? 67.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। पर हमें नियरेस्ट इंटीजर में लिखनी है, नियरेस्ट इंटीजर इसका क्या होगा? 67। So the answer is 67. Question number 17. A cylindrical vessel of radius 24 centimeter and height 7 centimeter is melted to form spherical balls of radius 3 centimeter. Write the half of the total number of spherical balls. तो क्या हुआ? एक्चुअली एक सिलेंड्रिकल वेसल था, इसे मेल्ट कर दिया एंड इससे क्या बना दी? बहुत सारी स्फेरिकल बॉल्स। हमें स्फेरिकल बॉल्स बतानी है कितनी बनी होगी। तो जब ये मेल्टिंग की प्रोसेस की तो क्या चीज सेम रही? वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल और इन स्फेरिकल बॉल्स की वॉल्यूम क्या रहेगी? सेम, क्योंकि हमने इसको मेल्ट करके ही तो बनाई है ये बॉल्स, राइट। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगी? वॉल्यूम ऑफ दीज स्फेरिकल बॉल्स। अब ये बॉल्स कितनी है? से n, एंड इनकी वॉल्यूम कितनी होगी? n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल बॉल, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है? πr²h एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉल्स n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर। कितना होगा? 4/3 पाई रेडियस इसका से r3, राइट। सो n निकालना है। रेडियस ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है 7 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ स्फेयर भी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो वैल्यूज पुट करते हैं n फाइंड करने के लिए। सबसे पहले पाई इंटू r² दैट इज 24 into 24 multiply by height 7. This is equal to n into 4/3 into pi. This radius is 3, so 3 into 3 into 3. तो कैलकुलेट कर लें, पाई टू पाई कैंसिल, this cancels out. So n is equal to 8 into 2 into 7 that is 112. नंबर ऑफ बॉल्स कितनी बनी होगी? 112। और हमें क्या राइट करना है? हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो इसका हाफ डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 56। सो द आंसर इज 56। क्वेश्चन नंबर 18।
In a cricket match, the probability that a batswoman hits a boundary is 1/6. If she plays 30 balls in total, write the number of balls on which she did not hit the boundary. Right? तो एक मैच हुआ जिसमें probability of hitting a boundary is 1/6 and the player played 30 balls in total. हमें क्या निकालना है? Number of balls on which she did not hit a boundary. So let the number of balls on which she did not hit a boundary be x. Right? So the probability that she did not hit a boundary. Probability क्या होगी of not hitting? This will be number of balls on which she did not hit a boundary, that is x, upon total number of balls played, which is given to be 30. So this is the probability of not hitting a boundary, and it is also given that probability of hitting a boundary is 1/6. Right? So the probability of hitting a boundary is given to be 1/6. क्या हम यहाँ से probability of not hitting a boundary निकाल सकते हैं? भाई एक बॉल है, उस पे या तो बाउंड्री होगी या नहीं होगी. So the probability of not hitting a boundary will be 1 minus 1/6. So this is actually 5/6. Right? So यहाँ से probability of not hitting a boundary is x/30 and यहाँ से probability of not hitting a boundary is 5/6. So these two are equal. So x turns out to be, cross multiply किया, that is 25. So the answer is number of balls on which she did not hit a boundary is 25. Question number 19. The coordinates of P and Q are -3, -5 and 2, -4 respectively. Write the value of ordinate of Q minus twice of abscissa of P. Right? So we are given two coordinates. Coordinates of P are -3, -5 and coordinates of Q are 2, -4. We need to write the value of this. Ordinate of Q. Ordinate of Q means y coordinate. Y coordinate of Q, that is -3. Minus twice of abscissa of P. Abscissa of P means x coordinate of P. X coordinate of P is -3. So this becomes -4, -2 into -3, that is +6. So the answer is 2. The last question, question number 20. Write the value of k if x is equal to 4 and y is equal to 5 is a solution of 3x plus ky is equal to 32. So we need to find the value of k and it is given that x is equal to 4 and y is equal to 5 is a solution of this linear equation. तो अगर ये इसके solution है then they will definitely satisfy this linear equation. तो satisfy करा देते हैं. x की जगह पे put किया 4 and y की जगह पे put किया 5. So it becomes 3 into 4 plus k into 5. This is equal to 32. Right? So k की वैल्यू निकालना है यहाँ से. क्या आएगा? 12 plus 5k is equal to 32 and k is 32 minus 12, that is 20 upon 5. So k is 4. So the answer is 4. So this was the last question and our paper is done here.